Fine. So let's get started. By now, you must be aware of how the Delhi University system works because एक semester हो गया है. So every single semester, before the starting of the semester, your meetings are conducted amongst teachers at Delhi School of Economics, sometimes online, sometimes offline, wherein it is decided कि what is going to be the syllabus, readings, exam pattern, are there any changes which are required. So your जो current course था आपका अभी intermediate mathematical methods for economics, this meeting was conducted on 28th of November, quite early. So that's great. People have clarity. And whatever is the situation that was discussed. So some of the pointers that will be relevant for us, we'll be discussing that. So one of the major points is there's no change in the syllabus coverage. So you would not know what does that mean. That means you'll have to look back. What is the syllabus? तो पीछे वाले syllabus को हमें cover करना पड़ेगा. So I have a screenshot of the last year's syllabus, which was exactly the same because last year was the syllabus also same. Last to last year also the syllabus was same. So basically, जो new education policy का course था, this is the course that was followed. So there are basically 3 units. Unit number 1 is linear algebra. Unit number 2 is functions of several real variables. And the third unit is multivariate optimization. सो देर इज नो चेंज इन द सिलेबस. यही सिलेबस रहेगा. आपकी जो रीडिंग के लिए जो मेन रेफरेंस बुक रहेगी दैट विल बी योर हैमंड बुक ओनली, जो आपने सेमेस्टर 1 में इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स के लिए आपने रेफर करी थी. सेम बुक वी विल हैव टू फॉलो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट एज वेल. तो ये आपका कोर्स मेजर 2 डिविजन्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज लीनियर अलजेब्रा एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी कैलकुलस. ठीक है. सो ये लीनियर अलजेब्रा एंड दिस विल बी कैलकुलस. ये 2 पोर्शंस हैं स्पेसिफिकली जो आपको कवर करने हैं. सो यूनिट नंबर 1 विल बी लीनियर अलजेब्रा. वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, मैट्रिसेस क्या होंगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे बनेगा, डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, डायगनलाइजेशन, ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं. This is something with which you might have some sort of familiarity in class 12 and yeah, I think in class 12 or 11 you have some similarity with or some familiarity with this topic. तो जो आपके पहले 3 चैप्टर्स रहेंगे, चैप्टर 12, 13 and 14, this will be your syllabus for linear algebra. In these 3 chapters you have some idea about chapter 12 and you also have some idea about chapter 13. चैप्टर 14 विल बी इंटायरली न्यू फॉर यू. इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो आपने आज तक कभी नहीं देखे हैं. ठीक है. लीनियर इंडिपेंडेंस, सुपरफ्लुअस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, थिंग्स लाइक दैट, ये सारे आपके टॉपिक्स होंगे बट ये आपने आज के पहले कभी नहीं पढ़ा है. सो दिस विल बी इंटायरली न्यू फॉर यू. देन यूनिट नंबर 2 विल बी फंक्शंस ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल्स. सो जो भी आपका टॉपिक रहा था लेट्स से चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 में, जो हमने इंट्रोडक्टरी एमएमई में किया था, फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर उसका डबल डेरिवेटिव और कंपैरेटिव स्टैटिक्स, ये सारे जो टॉपिक्स किए थे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, अभी तक आपने जो भी चीजें की थी देवर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स. कि आपका एक वेरिएबल है y is equals to f of x. This is your function. So everything was in terms of one variable. ठीक है. Now we will move in an advanced manner because economics में आप जितनी भी चीजें करोगे they will not be dependent on a single variable. They will all be dependent on multiple variables. So you will start talking about functions in several variables. इस तरीके के फॉर्मेट में हम लोग चले जाएंगे और इसको फिर समझना कैसे है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, डेरिवेटिव कैसे करते हैं. सो देर विल बी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स. ये सारे टॉपिक करेंगे. सो पहले तो आप इन फंक्शंस को डिटेल में समझोगे. वो पूरा पोर्शन हमारा चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम सिटसेटर एंड हैमंड, सेम बुक वी विल हैव. एंड देन द फाइनल यूनिट विल बी मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन. तो जो आपका फाइनल, just giving you a parallel of your course from intro MME. तो जहाँ पे आप पहले वन वेरिएबल में फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते थे, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि फंक्शन बहुत सारे वेरिएबल्स में है
और उसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो उसमें भी स्टेशनरी पॉइंट्स का एक सिमिलर पैरेलल कॉन्सेप्ट आप देखोगे। मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, यहाँ पे भी कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉनकेव फंक्शन, क्वाजाई कॉनकेव, क्वाजाई कॉन्वेक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अगेन इन अ मोर नंबर ऑफ वेरिएबल केसेस वी विल बी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज the entire economic theory is based on maximizing or optimizing something given certain constraint. ठीक है, so doing the best out of whatever resources you have. This is something that you've studied in your consumer theory, जो आपका introductory microeconomics का course था. So out of whatever options that you can choose, you have to choose the one which is maximizing your happiness or maximizing your utility. It is a multivariate optimization problem. ठीक है, तो आप ये सारी चीजें करोगे एंड द रेफरेंस विल बी चैप्टर नंबर 17। इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपके एडवांस एमएमई पेपर में आएंगे। देयर विल बी वन मोर एमएमई पेपर इन सेमेस्टर 3 दैट यू विल हैव टू डू। बट मोर और लेस आपका जो कोर्स रहेगा वो मेजरली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। लीनियर अलजेब्रा विल बी चैप्टर 12, 13 एंड 14, एंड देन कैलकुलस पोर्शन, जिसमें पहले इंट्रो पार्ट होगा और फंक्शंस ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स, जिसमें चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16 होगा। एंड देन यू विल हैव चैप्टर नंबर 17 विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, जिसमें आप स्ट्रिक्टली ऑप्टिमाइजेशन, जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सीखे हैं उनको आप अप्लाई करोगे। ठीक है, as far as the connection between these units is concerned, यूनिट नंबर 1 अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे चैप्टर 12, 13 और 14 ये आपस में एक सीक्वेंस में है। ठीक है, तो इफ somebody wants to study these, chapter 12, 13 and 14 are to be done in a particular sequence. फिर ये पोर्शन का इस पोर्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ इनमें आपस में सीक्वेंस है। फर्स्ट यू हैव टू डू 15, देन 16, देन 17। इफ somebody asks कि can I do this first, then this is not possible. You have to go sequentially because धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली कॉन्सेप्ट्स उस तरीके में प्रोग्रेस करेंगे। हाँ, लेकिन ये चीजें दिस एंड दिस दे आर इंडिपेंडेंट, सो आइदर यू कैन स्टार्ट विद दिस और यू कैन स्टार्ट विद दिस। ठीक है, apart from that, the weightage for this particular unit, this one will be 45%, and this one, these two combined will be 55%. So this part, unit 2 and unit 3 combined will be 55%. This one will be 45%. This is what is mentioned in this year's reading list. ठीक है, सो ये आपका सिलेबस है चैप्टर नंबर 12 टू चैप्टर नंबर 17। देयर आर 6 चैप्टर्स टू बी डन। इट लुक्स वेरी स्मॉल बट इट इज ह्यूज। ये जो सारे चैप्टर्स हैं, स्पेशली 15, 16 and 17, they are huge and they are all very very new, and you have also seen last year's MME paper, so you are aware of आपको कितनी मेहनत जो है पेपर में लगानी है। ठीक है, सो वी आर ऑल अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दैट नाउ, एंड दैट्स प्रिसाइसली द रीजन वी वुड लाइक टू स्टार्ट अर्ली। ठीक है, ये हमारा कोर्स है, इसके बीच में भी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं। आई विल कीप लेटिंग यू नो वाइल डिस्कसिंग द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स है, कोर्स बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, एंड विद इन दिस, coming back to this, there's no change in the syllabus coverage. However, it is to be reiterated that some of the sections are decided to be de-emphasized. मतलब you don't have to cover those topics because जो आपकी Hammond बुक में उन टॉपिक्स का जो ट्रीटमेंट है, मतलब जिस तरीके से वो चीजें पढ़ाई गई हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट, सो यू कैन स्किप दोज पोर्शंस। ये जो सेक्शंस, कुछ सेक्शंस आपको स्किप करने हैं, वो सब चीजें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। And I have also created like a list of topics from where you can skip, so there is a clear idea. So I'll show you that now only. So these are your chapters. हर chapter में सारे topics लिखे हुए हैं। Chapter number 12 will have 9 sections. It's a huge chapter. But ये chapter number 12 and chapter number 13 जो है, सम स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक ऑफ, स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बच्चे बहुत ज्यादा डिटेल में पहले पढ़ना शुरू करते हैं, तो चैप्टर 12 को बहुत वक्त देंगे, फिर 13 को भी बहुत वक्त देंगे, और ये टॉपिक्स जो है ये आपने ऑलरेडी
कहीं ना कहीं क्लास 12 में किए हुए हैं, हो सकता है रिवीजन की जरूरत हो, दैट इज फाइन, बट माय सजेशन वुड बी इन पे इतना ज्यादा वक्त नहीं लगाना है। जो चीजें नई हैं, जैसे चैप्टर 14 आपने आज तक नहीं किया है, लीनियर इंडिपेंडेंस, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आइगन वैल्यू, डायगोनलाइजेशन, ये सब टॉपिक पहले आपने कभी नहीं देखे हैं, तो you should be spending more time here. I have repeatedly seen people spending, let's say, 1 2 months on these topics. If I ask them, what are you doing? How much you've covered? Their standard response will be, ma'am, chapter 12 or 13 ho gaya. Or chapter 12 or 13 is the easiest out of all these. सो सजेशन इज, इसको पहले जो टॉपिक्स हैं 12 और 13 अगर आप कर रहे हो तो उसको क्विकली जो है कवर कर लेना है। थोड़ी सी फेमिलियरिटी भी है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें, कुछ चीज़ें नई हैं। वेक्टर्स का बहुत सारे लोगों ने डिस्कशन नहीं सुना होगा, जिन्होंने साइंसेस लिए होंगे उनको पता होगा कि वेक्टर्स एंड ऑल दैट, ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स, बट आई एम अज्यूमिंग नॉट मेनी ऑफ यू आर साइंस स्टूडेंट्स। एनीबडी फ्रॉम साइंसेस बैकग्राउंड? फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ी हो किसी ने? फिजिक्स किसी ने पढ़ी है यहाँ पे? नो? एवरीबडी फ्रॉम कॉमर्स? अच्छा, nobody is from commerce also. What were your streams, guys? Aryan had commerce. Okay, fine. Anybody from sciences? No, I was from sciences. Anyways, fine. सो जस्ट मेक श्योर कि अगर आपने वैसे साइंस नहीं ली होगी, यू हैड ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स, ओके ग्रेट फाइन। So, so vectors will be a new topic. All these geometric interpretation will be a new topic. Scalar product, lines, planes, कुछ चीजें होंगी जो नई है. Rest of the things will be fine, which you might have done here and there. Kramer's rule, determinant निकालना, cofactors, inverse of a matrix. कुछ कुछ topics आपने already किए होंगे. So suggestion is, don't spend too much time on, पहले बहुत ज्यादा टॉपिक, पहले 2 3 चैप्टर्स बहुत ज्यादा कवर करने में वक्त मत लगाना। जो चीजें बहुत नई हैं उन पे ज्यादा वक्त बिताना, लाइक चैप्टर 14 15 16 17। दैट डजंट मीन डोंट डू चैप्टर 12 एंड 13, ठीक है? ऑल राइट, इसमें जो जो पोर्शंस आपके यहाँ पे जो हाईलाइटेड है वो आपको नहीं करने हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन यू डोंट हैव टू डू, एंड ईच सेक्शन में जो जो छोटा छोटा पार्ट आपको स्किप करना है वो क्लियरली मेंशन्ड है। दिस विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर, कि इस सेक्शन में ये वाला पार्ट नहीं करना है, इस सेक्शन में ये वाला पार्ट नहीं करना है, सो दैट यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ विच सेक्शन इज टू बी डन। जैसे ये सेक्शन नहीं करना है आपको, इस सेक्शन में से ये एग्जाम्पल आपको स्किप करना है, ठीक है? सो ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेगी, आप इसको आराम से अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है? दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज टू बी स्किप्ड, ये थ्योरम आपको स्किप करनी है, ऑल दीज थिंग्स, इसमें ये पेजेस आपको स्किप करने हैं, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन योर रीडिंग लिस्ट कि क्या क्या पोर्शन स्किप करना है, ठीक है? And suggested teaching hours and weightage for broad 2 parts of the course. So calculus part uh, is 55% weightage, and linear algebra is 45% weightage. I think I said the same, right? Yeah, 45 and 55. So ये वाले पोर्शन की आपकी 55% वेटेज रहेगी, ये वाला 45% वेटेज रहेगा, फाइन। उसके बाद जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा? सो इसके पहले जो आपका लास्ट ईयर का पेपर था, सेम इंटरमीडिएट एमएमई, that had multiple sections, section A, section B, section C, but they said we don't want to do that now. So all the sections are removed. The pattern will be very simple now. There will be 10 questions, out of which you will be asked to attempt any 9. So 10 marks each. 10 marks each. तो आपके पास एक चॉइस रहेगी, रेस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम। एंड द एग्जाम पेपर जो है उसमें अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। दिस इज व्हाट देव रिटन, सिंपल भी होगा, एडवांस भी होगा, हर तरीके के होंगे। ईच क्वेश्चन में प्रेफरेबली हैव अप टू 2 पार्ट्स, तो एक क्वेश्चन के
up to 2 parts हो सकते हैं. This is what has been mentioned. Rest, your internal assessment, 6 marks for attendance, 2 class test, और ये जो पैटर्न आपका कॉलेज में फॉलो होता है, सेम थिंग, एंड देन कॉन्टिन्यूस असेसमेंट फॉर 40 marks. सो इन टोटल 70 marks हियर एंड 90 marks हियर. ठीक है. उसके अलावा एक और बुक मेंशन्ड है, लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन, बट दिस इज जस्ट एज अ रेफरेंस फॉर टीचर्स एंड नॉट फॉर स्टूडेंट्स, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डूइंग थिंग्स फ्रॉम देयर हियर. ठीक है. Few things which can be treated as a learning from the papers that we've seen. So जो आपका इंट्रोडक्टरी एमएमई पेपर था, उसको देख के ये चीज समझ में आई कि ठीक है, हमें पास्ट ईयर पेपर्स डिस्कस करने हैं, पास्ट ईयर पेपर्स को समझना भी है, because that is the only way to see what kind of questions can come from this topic. But we also have to put a lot of focus on the back questions that we have, and थोड़ा बहुत हम लोग जो हमारा थियरी पार्ट है उस पे भी फोकस करेंगे, because the paper was very generic. थोड़ा जनरल तरीके का हमारा पेपर था, जनरल तरीके के प्रूफ्स थे, ये सारी चीजें थी. तो PYQs, I would still say that they are important. Apart from that, आपके back questions. And it's very important to understand the concepts also in general sense. ये तीनों चीजें फोकस में रहेंगी, तभी जाके हम लोग अच्छे तरीके से चीजों को अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है. ये आपका सिलेबस है, क्या क्या पोर्शंस रिमूव्ड हैं, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा. So far, if anybody has any doubts, let me know, and then we'll move to the rest of the discussion.